Good day, everyone. Today we will be learning a new and a fresh topic DCL. You have learned the definition up till now DCL, Data Control Language. But today we will be learning what DCL does and what exactly DCL statements are. So we can create, up till now, you might be aware of only one thing that in the database, that is in Oracle, you are able to create tables. So tables are nothing but they are called objects in the language of database. So when we will be working in this semester on the database, we will be learning several different objects, among which the first object you are totally aware of, and that is your tables. On these tables, you can create several other objects also, and these objects are tables, that is, views, sequences, procedures, functions, triggers, cursors. So we will be learning all these things, and these are nothing but these are called objects. So when you are creating object in the database, जब आप objects create करते हो database, that objects have privileges. Now privileges का मतलब क्या है? Privileges means rights. Each object which you create in your database has some privileges associated with it, and those privileges allows the user of some or all the Oracle's resources on the server to be accessed by some other user or some other people. फाइन, एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो पर्सन ऑब्जेक्ट बनाता है दैट पर्सन इज कॉल्ड ओनर, और उस ओनर के पास सभी प्रिविलेजेस होते हैं. प्रिविलेजेस क्या है? राइट ऑन द ऑब्जेक्ट. सो व्हाट आर द objects? Objects are nothing but they are your tables, views, cursors, triggers, procedures, functions and sequences. अब ऑब्जेक्ट्स को कौन ओन कर सकता है, कौन पूरी तरह से उसके ऊपर राइट रख सकता है? जो पर्सन ने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो, यानी जो पर्सन ने वो ऑब्जेक्ट बनाया, वो क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है. सो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, यानी कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं? ऑल्टर, डिलीट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, ये सारे क्या हैं? राइट्स हैं. मीन्स व्हाट यू कैन डू सम ऑपरेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट्स. टेबल के ऊपर हम ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे क्या कर सकते हैं? हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं. सो बीइंग अ ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई कैन डू ऑल दिस things, all these operations on the objects. But a person who is not the owner of the object is not able to do any of these modifications or any of these operations on the object. एंड ये जो प्रिविलेजेस हैं, वो ओनर जो होता है वो दूसरे पर्सन को ये प्रिविलेजेस दे सकता है, या तो वो प्रिविलेजेस वापस से ले सकता है. तो ऑल दिस थिंग इज डन यूजिंग योर DCL statements. So if I am the owner of a table, I can give the rights and privileges to some other user. One user I can give, or I can give it to some n number of users. सो मैं प्रिविलेज दे सकती हूँ दूसरे यूजर को मेरा टेबल एक्सेस करने के लिए, उसके ऊपर प्रिविलेजेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ. मीन्स व्हाट, आई कैन गिव द रिस्ट्रिक्शंस दैट अ यूजर कैन ओनली व्यू द डेटा, यानी सिलेक्ट क्वेरी ही फायर कर सकता है. दूसरे यूजर को मैं दे सकती हूँ डिलीशन एंड अपडेशन का परमिशन, एंड तीसरे को यूजर को दे सकती हूँ इंसर्शन अपडेशन का परमिशन. या तो किसी और यूजर को मैं सारे के सारे यानी ऑल राइट्स आई कैन गिव टू दैट यूजर. एंड इफ आई एम फेड अप और इफ आई एम एंग्री विद दैट यूजर, देन आई कैन टेक बैक द परमिशंस एज वेल. मैं उस यूजर के पास से परमिशन वापस से ले सकती हूँ. सो इफ आई एम गिविंग द परमिशन, इफ आई एम गिविंग द privileges, then it is called granting the privileges. And if I am taking back the privileges, then it is called revoking the privileges. I hope that you are clear with privileges. Privileges means what? Rights or permissions, and these rights and permissions can be insert, update, delete. ओके और इन सब का कॉमन क्लॉज आप क्या लिख सकते हो? ऑल भी लिख सकते हो. Privileges can be granted
यानी आप दे सकते हो किसी को परमिशन, किसी दूसरे यूजर को, एंड आप जिसने दूसरे यूजर को परमिशन आपने दी है वो परमिशन वापस से आप ले सकते हो, दैट इज रिवोक कर सकते हो. बट हु इज द person who is having the right of granting the privileges and revoking the privileges is the owner, not the user to whom the permissions are given. And for granting and revoking the privileges, we need to learn SQL's DCL commands, that is data control language. Now, the first command to grant the privileges is called grant command, grant, grant. So grant command is used to provide access or privileges on the database objects to the users. जो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एक यूजर ने बनाए हैं और वो यूजर उसका ओनर है, तो वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर प्रिविलेजेस दूसरे यूजर को दे सकता है. द सिंटेक्स इज ग्रांट प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर नेम, पब्लिक और रोल नेम विथ ग्रांट ऑप्शन. नाउ प्रिविलेज नेम क्या क्या हो सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या तो उसका कॉमन क्या है, ऑल. सभी प्रिविलेजेस आपको देने हैं तो ऑल. ऑब्जेक्ट नेम का मतलब क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेबल का नाम, सीक्वेंस का नाम, ट्रिगर का नाम. टू यूजर, यूजर के नाम को आप जो आपका पर्सन जिसको आपको देना है प्रिविलेज उसका नाम आप लिख सकते हो. विथ ग्रांट ऑप्शन, विथ ग्रांट ऑप्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने दूसरे यूजर को राइट्स दिए हैं, आप ओनर हैं, तो आपने अपने फ्रेंड को राइट्स दे दिए हैं, एंड आप उस फ्रेंड को अलाउ करते हो कि आप दूसरे फ्रेंड को राइट्स दे सको, तो आपको क्या देना पड़ेगा, विथ ग्रांट ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ओनर, ज्योति इज द ओनर, ज्योति इज गिविंग privileges to Preeti, and I am allowing Preeti to give the privileges to her friends. So I will be giving her the privilege with grant option. Okay. So for example, if you want to grant, select, insert, update, and delete privilege on a table called supplier to the username Amar, then what you are going to write, अगर आपको select, insert, update and delete privileges देने हैं, किसको देने हैं, अमर को देने हैं, तो आपका grant statement क्या होगा, it will be grant सिलेक्टेड ऑप्शन, सिलेक्टेड प्रिविलेजेस ही देने हैं, इसीलिए आपको लिस्ट आउट करने पड़ेंगे सभी प्रिविलेजेस. कौन कौन से प्रिविलेजेस, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑन ऑब्जेक्ट का नाम, एंड ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम क्या है, सप्लायर है. टू अमर, दैट इज कौन से यूजर को प्रिविलेज देने हैं, अमर को देने हैं. अब मुझे सारे के सारे प्रिविलेजेस अमर को दे देने हैं, तो व्हाट आई विल बी राइटिंग, द कीवर्ड ऑल आई विल बी राइटिंग. ग्रांट ऑल ऑन सप्लायर्स टू अमर, तो सारे के सारे प्रिविलेजेस किसको मिल जाएंगे, अमर को मिल जाएंगे. नाउ सपोज कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट एक्सेस देना है सभी यूजर्स को, सभी यूजर्स को सिलेक्ट का प्रिविलेज देना है, यानी व्यूइंग का प्रिविलेज देना है, तो I can use the keyword public. So the grant statement will be grant select on suppliers to public. So all the users of the system will be able to select or will be able to fire the select query on which table, suppliers table. Now revoke command means what? If a owner has given some privileges, some rights to some other user, then I am the sole person to take back those privileges from that user. अब हम दोस्ती यारी में किसी दूसरे पर्सन को, जो हमारा फ्रेंड है, उसको हम सारे हक दे देते हैं, सारे राइट्स दे देते हैं कि ओके चल तू मेरी सारी चीजें यूज कर ले, फोन यूज कर ले, लैपटॉप यूज कर ले. लेकिन जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नो यू कांट टच माई फोन, यू कांट टच माई लैपटॉप, यू कांट यूज माई थिंग्स. दैट मीन्स विट वी आर टेकिंग बैक द राइट्स विच वी हैव गिवन टू अवर फ्रेंड. The same thing can be done in your SQL also. You can access the permissions, you can give the permissions, and you can even take back the permissions from the user.
तो अगर आपको परमिशन वापस से ले लेनी है तो आपको कौन सा कमांड देना है? रिवोक कमांड देना है। नाउ रिमेंबर, a person who is not the owner but has been granted the privilege has the power to revoke the privileges from the grantee. Means what? अगर मुझे ओनर ने परमिशन दी है प्रिविलेज की, कोई प्रिविलेज की परमिशन दी है और मैंने किसी दूसरे पर्सन को प्रिविलेज दे दिया है, तो अब क्या है करना है? मैं दूसरे पर्सन को जिसको मैंने प्रिविलेज दिया है उसके पास से मैं वो परमिशन वापस से रिवोक भी कर सकती हूँ। सो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ द रिवोक कमांड? रिवोक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ऑन ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर नेम। सिंपल सा है। सो रिवोक delete privilege on the table called supplier. What will I write? I will write revoke delete on suppliers from Deepak. अगर मुझे सारे के सारे परमिशंस वापस लेने हैं तो what I will be writing? खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हैप्पी लर्निंग।